Next question. Explain CAPM and bifurcation of the total risk into systematic risk and unsystematic risk. That is a question. So friends, the way we have studied a Markowitz model, similar to that we have new portfolio management theory जिसका नाम है CAPM, that is capital asset pricing model. I'm explaining the theory to you like this. Suppose you come across a situation कि जिसमें आपको ये डिसाइड करना है that whether you should buy a security or not. ये आपको डिसाइड करना है. सपोज आपको ऐसा डिसाइड करना है दैट से वेदर यू शुड होल्ड अ सिक्योरिटी और नॉट. तो आप डिसीजन कैसे ले सकते हो? दैट इज व्हाट द CAPM विल गाइड अस. Let us say that say you are a company and you are going to expand your existing business. Then in that case, what is the rate at which you should be having the expectation of the return from the expansion of the business? वो हमको CAPM समझाएगा. Let us say that say you are supposed to diversify your business. Then in that case, say for the purpose of diversification, when you are going to enter into the new line of the business, तो नए लाइन ऑफ द बिजनेस से आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए वो हमको CAPM समझाएगा. So what is the use of the CAPM? These are the use of the CAPM. CAPM will guide us that say whether you should buy a security or not. CAPM will guide us whether you should hold a security or you should sell the security which you are holding. CAPM will guide us say what is the price that should be paid for a security in a way that say the equilibrium price का calculation हमको CAPM सिखाएगा. अगर आप अपना business expand कर रहे हो, अगर आप कोई नए business में जा रहे हो, then in that case say what is your expectation from that line of the business, say with respect to the expansion and with respect to the diversification, वो हमको CAPM सिखाएगा. So there are number of utilities that say we have say with the CAPM. Apart from that, say we know that say the market scenario will keep on changing. So with the change in the market scenario, what kind of the change that you would be having say from your security or portfolio, वो हमको CAPM सिखाएगा. Instead of going to explain everything to you at one stroke, first of all I have a simple explanation for you, जिसमें हम लोग ये decide करेंगे, ये हम लोग समझेंगे that say how can we take a decision regarding purchasing of a security or not. That is the way I am going to start with the CAPM explanation. So proceeding further, let us say that say you want to take a decision regarding whether to purchase a stock which is listed in the US stock exchange. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में एक सिक्योरिटी लिस्टेड है और आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो CAPM आपको कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ. Everybody is requested to pay attention properly. CAPM says that I need some information for the decision making. जैसे कि एक I want the information about the risk free rate of return. I want information of risk free rate of return. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल मतलब ये है कि मार्केट में ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कोई भी रिस्क नहीं है. वी अंडरस्टैंड दैट्स द ट्रेजरी बिल इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द सेम. जब भी आप ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कोई भी रिस्क नहीं है. मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, पेट्रोल का प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है,
डॉलर का रेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, कुछ भी अपने को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। उन्होंने जो बोला उतना रिटर्न हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो CAPM ऐसा बोलता है दैट से फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिक्वायर्ड टू क्वांटिफाई वन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड, वी आर रिक्वायर्ड टू क्वांटिफाई व्हाट इज द मार्केट रिटर्न। सर मार्केट रिटर्न का मतलब क्या है? मार्केट रिटर्न का मतलब ये है व्हाट इज द ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ all securities taken together। सारी सिक्योरिटीज को मिला के से रिटर्न क्या है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ टर्म कॉल्ड मार्केट रिटर्न। जैसे मार्केट रिटर्न का आइडेंटिफिकेशन या उसका हम लोग लाइक वी कैन डिटरमाइन द सेम इन इंडिया बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द निफ्टी। निफ्टी इज कंसीडर्ड टू बी द मार्केट बैरोमीटर, यानी ऑन एन एवरेज सारी इंडस्ट्रीज को मिला के जो रिटर्न जनरेट होता है उसको लाइक मार्केट रिटर्न बोला जाता है। देन वी हैव सेंसेक्स, अगेन दैट इज कंसीडर्ड टू बी द मार्केट बैरोमीटर, यानी कि हम लोग ऐसा समझते हैं दैट से टेकिंग इनटू अकाउंट ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज इनटू अकाउंट जो भी रिटर्न होता है उसको मार्केट रिटर्न बोला जाता है। तो जो सिक्योरिटी के बारे में हमको डिसीजन लेना है, वो सिक्योरिटी जहां पे वो ट्रेड हो रहा है, वो सिक्योरिटी जिस जगह पे ट्रेड हो रहा है उसका हमको मार्केट रिटर्न का इंफॉर्मेशन चाहिए। So friends, here are a few examples that I want to show to you. That is, in USA we have the global Dow Jones, Nasdaq 100, Nasdaq Composition, New York Stock Exchange International, then Russell 2000, S&P 500. Then in the European countries, DAX in Germany, DIV, DAX in Germany. So these are the indices in Germany, AEX in Netherlands, CAC 40 in France, FTSE 100 in Great Britain, IBEX in Japan, IBEX 35, तो मोस्टली उसमें 35 स्टॉक्स इंक्लूडेड होंगे इस वजह से, OMX 30 in स्वीडन। तो हर एक कंट्री का अपना से इंडाइसेस होता है, BSX in Bermuda and so on, say we have say these are the indices। तो CAPM के मुताबिक ये क्या है? CAPM के मुताबिक ये मार्केट इंडिकेटर्स है, मार्केट का परफॉर्मेंस बता दे। सेंसेक्स इन इंडिया जैसे उन्होंने लिखा है, निक्की 225 इन जापान, शंघाई कंपोजिट इन दैट इज चाइना, KOSPI in Republic of Korea and so on। Next, third point, the third information is required about the security। जो सिक्योरिटी के बारे में आपको डिसीजन लेना है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। Either you that is say collect past information of the security which is likely to prevail in future, or future information of the security which is likely to prevail in future। इन दोनों में से हमको एक सिक्योरिटी दैट इज से एक इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सारी ये सारी सिक्योरिटी के बारे में और मार्केट के बारे में ये सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद CAPM says that we will make the calculation of alpha of the security। अल्फा ऑफ द सिक्योरिटी का कैलकुलेशन कैसे होगा? मीन रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मीन रिटर्न का मतलब क्या है? मीन रिटर्न का मतलब ये है द रिटर्न विच इज लाइकली टू बी जनरेटेड बाय द सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट आइदर द पास्ट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर परफॉर्मेंस। taking into account the past returns which is likely to prevail in future, or otherwise using the probability distribution method, जो भी हमारा फ्यूचर रिटर्न्स है उसको बोला जाता है द मीन रिटर्न, माइनस RR दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न।
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो CAPM बोलता है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन होगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस एडिशनल रिटर्न दैट द सिक्योरिटी शुड जनरेट। यानी हम लोग ऐसा कैलकुलेट करेंगे कि सिक्योरिटी के बारे में कि एज एन इन्वेस्टर को कितना रिटर्न सिक्योरिटी से चाहिए। इन्वेस्टर को सबसे पहले रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जितना रिटर्न चाहिए। इन एडिशन टू दैट द इन्वेस्टर वांट्स एडिशनल रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी बिकॉज इन्वेस्टर इज अंडरटेकिंग रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट। और ये जो रिस्क होता है ना, वो रिस्क का मेजरमेंट होता है इन फॉर्म ऑफ बीटा ऑफ द इन्वेस्टमेंट। दिस रिस्क इज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ बीटा ऑफ द सिक्योरिटी। बीटा का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। इन शॉर्ट से CAPM क्या बोलता है, दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन दैट से कंसीडरिंग दैट इज रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी, इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिलना चाहिए और ये उनको रिटर्न मिलने वाला है, उसका जो डिफरेंस है दैट इज कंसीडर्ड टू बी अल्फा। आई वांट यू टू आंसर इन द चैट बॉक्स, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो क्या सिक्योरिटी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। So let us understand that say taking into account the required, that is risk free rate of return, risk of the security in form of beta, the required rate of return is 15%, and we are expecting that the security will generate a return of 18%. तो अल्फा क्या होगा? अल्फा पॉजिटिव होगा, and in that case we understand we should buy the security। क्यों? क्योंकि हमको रिटर्न मिलना कितना चाहिए? 15। कितना मिलने वाला है? 18। So 18 is more than 15, so we should buy the security। And of course, if at all the alpha is negative, then in that case we should not buy the security। In a way that say return मिलना चाहिए 15, पर हमको लग रहा है कि रिटर्न मिलेगा 14, 15 से कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हमको सिक्योरिटी बाय नहीं करना चाहिए। That is the way we are supposed to take the decision, say with respect to the सिक्योरिटी, ऐसा हम लोग समझते हैं। ओके, नाउ हैविंग एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द CAPM, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। CAPM का कहना ऐसा है कि हमारे मुताबिक हमने टोटल रिस्क को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ना ये सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली वी अंडरस्टैंड दैट से इन्वेस्टर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, कंपनी मार्केट में जाके बिजनेस करता है, कंपनी मार्केट से जो अर्न करता है वो इन्वेस्टर को वो पास ऑन करता है। दैट इज व्हाट्स द बेसिकली द वे एन इन्वेस्टर अर्न्स। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो सारा अनसर्टेनिटी, जो सारा रिस्क एक कंपनी को है इन द मार्केट, द सेम काइंड ऑफ रिस्क दैट an investor is also having when he is investing in a company। कंपनी को जहाँ सारा रिस्क एक्सपोजर है, वही का वही सारा रिस्क एक्सपोजर एक इन्वेस्टर को भी होता है। CAPM का कहना ऐसा है that say there are certain like risk factors which are there in the market which is absolutely uncontrollable, जैसे कि a situation of war। वॉर के सिचुएशन में कोई भी कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट में बिजनेस ही नहीं है। वी अंडरस्टैंड दैट से द एडवर्स चेंज ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। कंपनी का बेस्ट प्लानिंग होने के बावजूद ऐसा हो सकता है दैट से एक्सचेंज रेट एडवर्सली अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है एंड इन टर्न इन्वेस्टर को। उसके बाद we understand that say an investor may be having a kind of situation in which that say there is a situation of like the high rate of the population, inflation, then we understand that say very importantly change in government policies। These factors are such which are not under control of any one company
और ये सारे फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से रिटर्न ऑफ द कंपनी वुड बी, दैट इज से देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, और जिसकी वजह से रिटर्न टू द इन्वेस्टर विल आल्सो बी एडवर्सली अफेक्टेड. सो वी बिलीव, CAPM ऐसा होता है, वी बिलीव दैट से ये जो रिस्क एस्पेक्ट है ना, उसको हम लोग मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, उससे हम लोग मेजर करते हैं. उसके अलावा एक रिस्क होता है जिसका नाम है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसको यूनिक रिस्क भी बोलते हैं लोग. इसका मतलब ये है दैट से जो भी इन्वेस्टर का गलत डिसीजन है उसकी वजह से जो रिस्क है उसको अनसिस्टमैटिक रिस्क कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, उनका कहना ऐसा है, इफ एट ऑल एन इन्वेस्टर इज हैविंग अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और उसकी वजह से इन्वेस्टर को नुकसान होता है, तो फॉर दैट से वी डू नॉट allow investor to charge additional return. Investor cannot expect the risk premium for a kind of risk which investor can diversify. If at all an investor is making investment in securities which have positive relationship, instead of making investment say in securities having lower positive, negative और independent relationship, अगर आपने सारा का सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा दिया और फिर आप तो बोलते हो कि मुझे नुकसान हो गया, तो वो आपका गलती है. If at all you make investment in the company say which is having say the problem with its laborer, न्यूज़पेपर में रेगुलरली आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट से बता रहा है दैट से ये कंपनी का अपने एम्प्लॉयज के साथ से अच्छा रिलेशनशिप नहीं है. मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज से कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज इन द मीडिया से फॉर हैविंग मालाफाइड इंटेंशन, और उसकी वजह से if at all say the management of the company is not having good reputation in the market, in spite of knowing that अगर आप ऐसी सिक्योरिटीज पे इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको नुकसान जाता है, then in that case ये आपका गलत डिसीजन है, तो उसके लिए आपको कोई भी एडिशनल रिटर्न नहीं मिलेगा. CAPM क्या बोलता है, से we assume that investor will be properly diversifying the portfolio so that so the unsystematic risk is completely nullified and there is only systematic risk in the portfolio. ऐसा उनका मानना है. So we will be having a kind of situation like this. As per CAPM, on x-axis we take diversification, and on y-axis we take risk of portfolio. CAPM का कहना ऐसा है दैट आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कम है, तो टोटल रिस्क आपका ये होगा. जैसे जैसे आप अपना पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा कि जो भी अनसिस्टमेटिक रिस्क है, अनसिस्टमेटिक रिस्क धीरे धीरे क्या होगा, पहले रिड्यूस होगा और वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा. बियॉन्ड द पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन का कोई भी फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि उनका कहना क्या है दैट से बियॉन्ड द पॉइंट you will not be able to reduce the risk of the portfolio because all the portfolios are having some element of the minimum risk, and this minimum risk is given a name as systematic risk. So read on heading CAPM. Capital asset pricing model. First point, as per CAPM, there are two types of risk.
comma, A, systematic risk, B, unsystematic risk. Second point, whenever an investor is investing in a company, comma, investor is exposed to same risk to which company is exposed to. Full stop. Third point, in spite of best planning, comma, market condition may be such that company will not be able to generate return, so in turn an investor will also have loss in his investment. Full stop. Examples of systematic risk are read on 1. Inflation, population, war, exchange rate fluctuation, change in monetary policy, change in government policy, comma, such other non-controllable factors. Fourth, systematic risk
is measured in form of beta of security. Full stop. Fifth point, unsystematic risk. Means that portion of risk of portfolio which is due to mistake of investor, namely 1. Investment in a company not having good relations with laborers. Second, investment in a company which is criticized in media for their malafide acts. Third, investment in undiversified portfolio. With paragraph read down, and other such controllable factors. Next point, for the purpose of decision making, comma, we have to compute alpha of security. Alpha is equal to x bar minus RR. X bar is mean return slash anticipated rate of return. And RR stands for required rate of return. Read out with paragraph. An investor would be advised to buy slash hold a security
if alpha is positive or 0, full stop. Investor should sell security slash do not buy if alpha is negative. So please draw this diagram. कुछ और भी नाम है, राइट डाउन। सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क के दूसरे भी नाम है। एज अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क को बोला जाता है डाइवर्सिफाइबल रिस्क। सिस्टमैटिक को बोला जाता है एक्सप्लेन्ड रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक को बोला जाता है अनएक्सप्लेन्ड रिस्क। सिस्टमैटिक को दूसरा नाम दिया जाता है मार्केट रिस्क, और उसको बोला जाता है यूनिक रिस्क। So these are only different names.